Hello friend, I am Samadi back to a new video regarding soil mechanics. So welcome to all my channel. So after a long time back, so today our topic is fact, factor affecting compaction. Okay, so that is the seventh video of this compaction series. Here you find a I button. So if you didn't watch the last 6 video of this compaction, so then you can check this I button and see all the video. So here is a brief introduction about myself. I am Saumeli Bhaldar, qualified IGBC AP as well as Six Sigma and qualified Gate 19, and I am an Igmarian. So without further delay, let's get started. So now we have to see what is the parameter that can affect the compaction. See, compaction is basically, suppose this is our soil particles, this is our soil molecule, right? So in normal state, what happened, there might be chance of, not might be, there is definitely void ratio, right? So in this void ratio, what happened, there should be air or water. So in compaction, our aim is we can reduce the air particle, but these in conducting this process, there is something which can affect our com that is can affect our this compaction process. So what is that parameter? Number one is water content. Water contents means, suppose this soil, in this soil particle, if water content is high, then what will happen? Suppose water content is low, then what happen? So we can talk about this. Second is amount. Second is amount and type of compaction. Amount means amount means compacting energy. Compacting energy, we talk about the SPT compacting energy, then modified Proctor test compacting energy. So we'll talk about that. Then we talk about this method means, is it done by SPT, that means standard Proctor test. It is not like standard penetration test, it is standard Proctor test. Or is it modified Proctor test, like this? Or maybe is it referred to IS code? So we'll talk about this thing in this method of compaction, right? Then type of soil, is it sand, is it sand, or is it clay, or is it gravel? So we'll talk about this, that how the type of soil can affect the compaction. And lastly, we talk about the addition of the admixture. So this all thing, this thing, this thing, this thing, this thing, and this all thing we talk about in this video. So hopefully from this video you will know something new. So after watching this video, if you think this is good for you, then definitely share the video and like the video. And if you feel that it is a very bad video, then definitely dislike video. Okay, so now we talk about the water content. So what is our water content? Water content means W, that is our mass of water by mass of soil. Okay, the basic thing. Okay, what is it written? It has been seen by lab experiment as the water content is increased. That is the main word, is increase. The compacted density goes on increase. सिंपल सी बात है, देखो भाई चीज ऐसे है, अच्छे से समझो। ये आपका क्या है, इस बिकर है और पॉट है। यहाँ पे आप क्या किया, आप यहाँ पे सॉइल डाल दिया। ओके, सॉइल डाल दिया। सॉइल के अंदर कौन है? सॉइल के अंदर एयर है और पानी नहीं है। तो आप एयर को कैसे soil से आउट करोगे? अब बताओ, हाउ यू आउट द एयर और रिपल्शन द एयर, बिकॉज देन यू हैव टू एंटर द वाटर। तो बात यह है, आप वाटर को एंटर कर रहे हो और ये आपका एयर को बाहर बाहर भेज रहा है। So that is why they are written
water content is increased, water content is increased, then compacted density goes on increasing. That means आप जितने वाटर कंटेंट यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो तो उतना आपका क्या एयर बाहर जा रहा है। एयर अगर बाहर जा रहा है उसका मतलब जो सॉइल था वो ज्यादा कंपैक्ट हो रहा है, वो ज्यादा कंपैक्ट हो रहा है। सो लॉजिक समझ में आ गया, राइट और रॉन्ग? अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन में, बस कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो। Till a maximum dry density is achieved. Till the maximum dry density is achieved. After which further addition of water decrease the density. That means you just talk about you just remember this is our graph. This is our water content. यहाँ पे आपका वो ड्राई डेंसिटी रहता है और मान लो ये वॉल्यूम भी आप लिख सकते हो। तो इस इतना तक क्या होगा, आप जितना वाटर इंक्रीज कर रहे होगे वो क्या होगा, वो फर्दर आपका वॉल्यूम मतलब जो डेंसिटी हो डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। बट इसके बाद दिस सेक्शन अब जितना आपको वाटर कंटेंट ऐड कर रहे होगे वो डेंसिटी रिड्यूस करेंगे, ठीक है। सो यही चीज यहाँ पे लिखा है। नाउ वाटर कंटेंट इज इंक्रीज, the compacted density goes increased till a maximum dry density, when only relative small amount of water is present in firmly held by electrical force। ठीक है, ये मतलब उतना भी नहीं, काफी नहीं है, बट ये एक्चुअल मेन चीज है। एक मैक्सिमम लिमिट तक ये इंक्रीज करेंगे, ठीक है। बट ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे लिखा है electrical force surface soil particle with a high concentration of electrolyte which prevent the diffuse double layer surrounding the particle from developing fully. The double layer diffusion lead to lower inner particle repulsion. Bas. After optimum water content, reach the air void approach approximately a constant value as further increase in water content does not cause the applicable decrease in them। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, मतलब ये आपका सॉइल है, ये सॉइल है, यहाँ पे आप पानी डाल दो, एक सारे लिमिट तक एयर बाहर आएंगे, बट एक लिमिट के बाद एयर बाहर में नहीं आएंगे, तब अगर तभी भी आप वाटर डाल रहे हो, तब क्या होगा, तब उसका जो ड्राई डेंसिटी होगा वो एक सर्टेन लिमिट के बाद डिक्रीज करेंगे, यही ये बात बोलना चाहते हैं, ठीक है। The total void due to water and air coming increase water content beyond the optimum, hence the dry density soil falls. So ये जो हम लिखा है वाटर कंटेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो चीजें ये ऐसा है, अगर ग्राफ में ऐसे ड्रॉ करूंगा, मान लो मैं इसको ए कहा, ये पॉइंट को बी कहा दे दिया, ये सी कह दिया। अगर ए टू बी वाटर परसेंटेज जितना इंक्रीज करोगे ड्राई डेंसिटी उतना इंक्रीज करोगे, तो ये पॉइंट तक तो वाटर कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, बट उसके बाद दैट इज बी टू सी, बी टू सी रेंज में आप जितना वाटर ऐड करोगे उसका डेंसिटी क्या होगा, ग्रेजुअली रिड्यूस होंगे। सो बी टू सी सेक्शन में वाटर कंपैक्शन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप द थिंग्स विल क्लियर राइट नाउ। सो if you have some doubt, do comment in comment section. Now we talk about the amount and type of compaction. Amount means we talk about in terms of energy, ठीक है। क्या लिखा है, the amount of compaction greatly affect maximum dry density and optimum water content in given soil. The effect of increasing compactive energy result increase the maximum dry density and decrease the optimum water content as shown in the figure.
The increase in maximum dry density does not have linear relationship with increasing compacting effort. तो इसका एक ग्राफ है, तो ये ग्राफ हम देखेंगे क्या है। देखो, दिस इज द ग्राफ। ओके, यहाँ पे लिखा है वाटर कंटेंट लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ड्राई डेंसिटी लिखा है, और ये आपका हो गया आपको वही जीरो सैचुरेशन लाइन, जिसको हम कहता है जीरो एयर वर्ल्ड लाइन। आप बताओ जीरो एयर वर्ल्ड लाइन होता क्या है, ये आप मुझे बताओ। अगर नहीं पता है वो भी बताओ, तो मैं इसके बारे में वीडियो बना देंगे, जीरो एयर वर्ल्ड लाइन के बारे में, ठीक है। एनीवे, तो देखो, पहले मैं कंपैक्टिंग एनर्जी नॉर्मल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या है 25 लो में काम हो गया, और यहाँ पे वाटर करंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम 13% वाटर कंटेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 13% वाटर कंटेंट। इसके बाद देखो, इसके बाद मैं 20 ब्लो दिया, और मान लो, और इसका देखो जो टॉप पॉइंट हो रहा है, नहीं ये 13 पॉइंट मैं सही नहीं बोला, एक मिनट, ये 13 पॉइंट सही नहीं, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, देखो ये मैक्सिमम, ये करीबन मान लो 12.5 है। इसके पास 20 ब्लो दिया है, ये थोड़ा थोड़ा राइट में शिफ्ट हो गया, ये और राइट में शिफ्ट हो गया, और ये देखो, ये तो जब मैं 10 ब्लो में काम खत्म कर लिया, ये देखो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये आ गया करीबन 13.6 के आ गया। तो मतलब ये हो गया ना कंपैक्टिंग एनर्जी, ये मैं इंक्रीज कर रहा हूँ सेम सॉइल पे। कंपैक्टिंग एनर्जी अगर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये ब्लो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर रिड्यूस हो रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो, पहले था 12.3, उसके बाद 12, मान लो 12.4 हो गया, उसके बाद आ गया 12.6, उसका 12.8, इसके बाद होगा 13.6। तो OMC क्या हो गया, OMC आपका इंक्रीज हो रहा है, तो OMC इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ड्राई डेंसिटी क्या हो रहा है, रो ड्राई डिक्रीज हो रहा है। हमको कंपैक्शन करने का मकसद क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ कंपैक्शन, कंपैक्शन का मतलब ये होता है, रो जो ड्राई, इसको हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं अगर ज्यादा कंपैक्टिंग एनर्जी में डाल दूंगा, देन रो ड्राई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगे। सो आई होप दिस ग्राफ विल क्लियर। बट अगर तभी भी कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। बट वन थिंग मोर, आप मुझे बताओ, व्हाट इज द जीरो एयर वर्ल्ड लाइन होता है, जीरो एयर वर्ल्ड लाइन क्या चीज होता है, वो मुझे आप बताओ। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट में बताओ सर, मुझे नहीं पता है, तो मैं इसके लिए और एक वीडियो बना दूंगा। ओके, डोंट वरी। नाउ वी टॉक अबाउट द मेथड ऑफ कंपैक्शन। मेथड ऑफ कंपैक्शन को मतलब क्या होता है, जैसे मेथड होता है क्या, एसपीटी हो गया, और होता है क्या होगा आपका मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट होता है, हो गया। तो एसपीटी का कॉम्पैक्टिंग एनर्जी क्या है, अगर मैं ऐसे बताऊंगा, एसपीटी का कॉम्पैक्टिंग एनर्जी थोड़ा कम है एमपीटी से, जो ज़्यादा है। तो एमपीटी जो ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या, वो जो ड्राई डेंसिटी होता है वो थोड़ा कम होगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। बात सिंपल सा है। तो ये मेथड, और बहुत सारा है, जैसे आई एस मेथड भी हो गया। तो बट ज़्यादा पूछता है एसपीटी और एमपीटी से ज़्यादा पूछता है। ओके, तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ कंपैक्शन। नाउ टाइप ऑफ सॉइल। देखो, टाइप ऑफ सॉइल का बात क्या है, ये बहुत सारा तो क्या है सॉइल है, जैसे GW, HW, ML, CL, CH। जैसे जैसे सॉइल, मतलब टाइप ऑफ सॉइल में हम किसको कांस्टेंट रख रहे हैं, मैं मेथड को, कंपैक्टिंग एनर्जी को, इसको मैं हमको कांस्टेंट रख रहा हूँ, ठीक है। मेथड मान लो हो गया आपका एसपीटी आ गया, अगर एसपीटी मैंने ठान लिया, तो ये जो एनर्जी है ये भी इसका कांस्टेंट बन गया, ठीक है। तो ये हर तरफ का क्या ले लिया हमने, सॉइल को ले लिया।
जैसे GW होगा H2। अब देखो इसका OMC यहाँ पे आ गया <9। इसको OMC आ गया सम अराउंड 10 to 15। ये लगभग 15 में रीच कर रहा है। ये आ गया आपका लगभग 15 to 20 और ये आ गया आपका लगभग 20 to 25। तो ये तो एक चीज हमको क्लियरली मेंशन हो गया। तो अगर सॉइल का टाइप चेंज होगा, तो क्या होगा, उसका ड्राई डेंसिटी भी चेंज हो जाएंगे, होंगे और साथ ही साथ आपका जो वाटर कंटेंट है इसका परसेंटेज भी चेंज हो जाएंगे। ये हो गया टाइप ऑफ सॉइल। अगर मैं यहाँ पे क्ले के बारे में बात करूँ, एग्जैक्टली पर्टिकुलर ये है क्ले के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्ले में मतलब पहले देखो क्या है, ये जो है आपका ए पॉइंट है, ये है ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया है, कॉम्पैक्शन स्टार्ट किया है और हम स्टार्ट किया 5% वाटर से स्टार्ट किया। जब 5% वाटर में जस्ट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ, 5 ये आपको मान लो 7.5, ये 12.5 आपका, ये आपका 1270 17.5 और ये 22.5, ठीक है। तो हम क्या किया, थोड़ा थोड़ा वाटर को इंक्रीज कर रहा है। थोड़ा थोड़ा क्या किया, वाटर को इंक्रीज किया। जब थोड़ा थोड़ा वाटर को इंक्रीज करे, नॉर्मल कॉम्पैक्शन ग्राफ क्या होता है, नॉर्मल कॉम्पैक्शन ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ होता है। पहले तो वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हो तो आपका ड्राई डेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजें उल्टा हो गया है। मतलब नॉर्मल सॉइल के लिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, बट क्ले के लिए कहाँ से शुरू हो रहा है, पहले तो 1.40 था, आपने पानी डाल दिया, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ से बी पॉइंट से ये इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। तो ये क्यों होता है, ये होता है बल्किंग के लिए होता है। जब बल्किंग इफेक्ट होता है तो बल्किंग के लिए ये चीज होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेम उसके बाद सेम है। तो वाटर कंटेंट क्या हो, अगर अब जितने वाटर इंक्रीज करोगे एक सर्टेन पॉइंट सी तक ये इंक्रीज करेंगे, उसके बाद कोटा क्ले के लिए क्या हो जाएगा, उसमें रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये होता है टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कॉम्पैक्शन कैसे होगा, मतलब ये भी कॉम्पैक्शन को अफेक्ट कर सकता है। सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो ये मैं ले लिया GW में आपने बोल दिया इसका आएगा 7.9 में, ये आपका OMC होगा और इसका जो वो आएगा ड्राई डेंसिटी रो ड्राई, ये आएगा आपका 2 ग्राम पर सीसी। तो आपने क्या किया, और एक सॉइल ले लिया, मान लो CH ले लिया, और आपने क्या किया, मतलब इंस्टेंट 7.9 वाटर कंटेंट दे दिया। अब मान लो अब 7.9 का वाटर कंटेंट दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 7.9 का मतलब होगा इस पॉइंट। तो इस पॉइंट में अगर ये ग्राफ आ रहा है, तो ग्राफ को मैं अगर थोड़ा यहाँ पे करूंगा तो 7.9 में ग्राफ स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, बिकॉज CH के लिए ग्राफ स्टार्ट हो रहा है व्हेन वाटर कंटेंट 20। तो इस यहाँ पे रो ड्राई का वैल्यू कुछ नहीं आएगा भाई, कुछ नहीं आएगा। तो यही चीज होता है टाइप ऑफ सॉइल। आप चेंज करोगे तो ऐसे ऐसे कॉम्पैक्शन को क्या होता है, अफेक्ट होता है, हो सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट द एडमिक्सचर। देखो भाई एडमिक्सचर क्या चीज है, मैं यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने यहाँ पे आपको सॉइल डाल दिया और अच्छे से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो सॉइल पार्टिकल्स, ये सॉइल पार्टिकल, और इसके अंदर कौन होगा, इसके अंदर होगा आपका वो होगा क्या, आपको होगा
एयर बबल। तो आप जब वो एडमिक्सचर को यहाँ पे डाल रहे हो, एडमिक्सचर को जब डाल रहे हो तो क्या ये एयर पार्टिकल को ये बाहर भेज रहा है। तो इसको एक्चुअल सॉइल मैकेनिक्स लैंग्वेज में कहता है सॉइल स्टेबिलाईजेशन, स्टेबिलाईजेशन। बस ये बस जान रखो, एडमिक्सचर को इसको हम कहता है सॉइल स्टेबिलाईजेशन। तो जब सॉइल स्टेबिलाईजेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से पता चल गया स्टेबिलाईजेशन क्या होता है। जैसे स्टेबिलाईजेशन यहाँ पे आप सीमेंट डाल सकते हो, सीमेंट दे सकते हो एज स्टेबिलाईजेशन, नहीं तो आप दे सकते हो बिटुमेन दे सकते हो, नहीं तो आप दे सकते हो जियोसिंथेटिक मटेरियल, ये भी आप यूज कर सकते हो as a admixture. So yeah, that is about the admixture. So yeah, that is all about our today's video. So where I talk about the various parameter, that is water content, amount, method, type and admixture. Then I discuss about the water content thoroughly, then amount, then method of compaction, then these graphs and admixture. So I hope there is a no doubt. If you feel you if you feel if you feel today you are learning something new, then definitely like banta hai or share to your friends. And for getting more such kind of video, subscribe this channel and press the bell icon for getting the notification. And definitely thank you for watching this video. Okay, goodbye.